Hello students, this is the chapter first in geography class 7th. Our topic is environment. Environment यानी पर्यावरण, वो आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे द वर्ड एनवायरमेंट इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब अवर सराउंडिंग। The word environment is derived from the French word envire or environ, which mean neighborhood. All natural and man-made things present around us can be termed as the environment. यानी वो सारी चीज़ें जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों या मानव निर्मित हों, वो पर्यावरण बनाती हैं। इसमें plants, animal, building, human beings, all are the part of our environment. An environment is the sum of the all living and non-living things that surrounded an organism or the group of the organism. Environment provide us air to breathe, water to drink, food to eat, and land to live. Now कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण किन किन चीज़ों से बनता है या पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं, इसके सहायक तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। उसमें पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण। उसमें these and includes all the objects created by the nature such as the land, जिसको हम लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर एंड लिविंग थिंग्स जिसको ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड करते हैं या नेचुरल कंपोनेंट्स में हम इनको इंक्लूड करते हैं। दूसरा है मैन मेड कंपोनेंट्स यानी मानव निर्मित जो है वातावरण वो किस तरीके से बनता है, यानी उसमें कौन कौन से तत्व हैं। द ऑब्जेक्टिव्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस, द ऑब्जेक्टिव created by the human beings such as the building, park, bridge, roads, industries, etc. are the man-made components. Now third is the human components. Human components में these comprise the human beings in the various perspectives, individual, family, community, कल्चर, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन। एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं हम बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और द बायोटिक्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। टू कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट आर द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सेकंड इज एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर एक्सेट्रा। Now, a natural environment is the made up of those things which are not made by the man. Rather, these are the created by nature. It's comprises biotic and abiotic components. Like it's include the physical features of those like mountains, plateaus, plains, valleys, forests, land, air, river, ocean, water, all living and non-living things. Now third topic is our dominance of the natural environment, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के कौन कौन से तत्व हैं, घटक हैं। उसमें पहला है देयर आर द थ्री मेजर डिफरेंट डोमिनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर। सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर। द वर्ड मीनिंग लिथोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस। लिथोस मीन्स रॉक्स। लैंड इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड एंड द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It's made up of the rock and the minerals. It's made up of the rocks and the minerals and cover
by the thin layer of the soil. It is irregular surface, various landforms like mountain, plateaus, plain, and the valley. It provides us the forest, grasslands, grazing lands, land for agriculture, human settlement, and the minerals for the industries. Second number is the hydrosphere. The word hydro is derived from the Greek word hydro. Hydro means vapors. All the water bodies of the earth together, the hydrosphere. All form of the precipitation like the ice, snow, rain, etc. are the part of the hydrosphere. The hydrosphere is initial for the support of the life on this planet. About 71% of the earth's surface is covered by the water in the form of the ocean. Only small portion of the fresh water is found in river, lakes or the groundwater. Third is the atmosphere. Atmosphere. The word atmosphere has been derived from the Greek word atoms, which mean the vapor. Atmosphere is the thin layer of the air surrounded by the earth. It is the mixture of the gases and the water vapors. The earth like a thin blanket of the air. It protects us from the harmful radiation, solar radiation such as the ultraviolet rays and scorching heat of the sun. Now third is the biosphere. Biosphere is the combination of the all three dominants. It is the combination of the all above the terms such as the biosphere. The Greek word bios means life. This biosphere is very small part of the earth where land, air, waters are present and interact each other. All living organisms found on the earth are the part of the earth's biosphere. Biosphere has great impact on the climate because it is closely connected with the atmosphere. Now the elements of the biosphere. बायोस्फीयर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर इज प्रोड्यूसर एंड और ऑटोट्रॉफी एंड द कंज्यूमर और ए हेटरोट्रॉफीज. प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स. सेकंड इज द कंज्यूमर्स यानी जो उपभोग करते हैं. तो द कंज्यूमर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. द कंज्यूमर्स आर द थ्री टाइप. तीन तरह के उपभोक्ता होते हैं. एक कार्निवोरस जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं. दूसरा हार्बीवोरस प्लांट ईटर्स एंड द ओमनिवोरस फ्लैश एंड द प्लांट eaters. Plant, animal and the human beings depends on each other, their surrounding. The relation of the dependence or interdependence together consist an ecosystem. यानी एक दूसरे के ऊपर यानी पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं. नाउ द मैन मेड एनवायरनमेंट. मैन मेड एनवायरनमेंट. मैन व्यक्ति ने कुछ ही अभी नई तकनीकों के द्वारा पर्यावरण को संतुलित करने या अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है. जिस तरीके से आप देखते हो कि गर्मियों के दिनों में गर्मी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसके बचाव के लिए जिस तरीके से हम कूलर, एसी वगैरह लगाते हैं, तो कुछ हद तक यानी कुछ परसेंट हम एनवायरनमेंट को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं. ऐसे सर्दियों में हीटर वगैरह लगा के हम एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक करने की कोशिश करते हैं. तो मैन ने एनवायर को मॉडिफाई करने का बहुत कोशिश की है. विद द passage of the time our society developed the immunity to fulfill his needs. Man can has heartlessly carried out his activities without considering the impact of the environment. यानी व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण का विनाश
बहुत तेज़ गति से किया। उसने ये नहीं सोचा कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने अपने व्यक्तिगत उपलब्धि या डेवलपमेंट के लिए जंगलों का विनाश कर दिया। कटिंग द फॉरेस्ट, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया। इफेक्टेड द वेदर कंडीशंस। लार्ज एग्रीकल्चर लैंड्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, यानी जो खेती के योग्य ज़मीन थी उसको इंडस्ट्रीज़ में बदल दिया है, और रोड्स बना दिए गए हैं, और रेजिडेंस इंडस्ट्रीज़ बना दी गई हैं। इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है। पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। पॉल्यूशन के कारण और व्हीकल के धुएं के कारण, स्मोक्स के कारण जो है हमको एसिड रेन के रूप में ये झेलना पड़ रहा है। इट इज़ द हाई टाइम टू एक्ट प्रॉपरली टू सेव एनवायरनमेंट। इसलिए हमें जो है 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब है कि ये पर्यावरण है हमारे लिए क्या क्या करता है, इससे हमें क्या फ़ायदा है। पर्यावरण जो है एनवायरनमेंट, ये हम एक दूसरे से के ऊपर इसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं। पहला कि प्लांट्स प्रोवाइड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, यानी पेड़ पौधे हैं वो हमें स्वस्थ ऑक्सीजन देते हैं। किसके लिए? सांस लेने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्लांट्स गिव आउट द ऑक्सीजन एंड टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडली, प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू द एनिमल, यानी पेड़ पौधों को खा के ही जो है जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो जीवित रहते हैं। तीसरा, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और दूसरे जो जंगल हैं वो किसके आश्रय करते हैं, शेल्टर देते हैं किसको? वाइल्ड लाइफ को, यानी जो जंगली जीव हैं वो जंगलों में ही रहते हैं। और चौथी चीज़ है कि एनिमल्स डंग्स प्रोवाइड मैन्यूर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, यानी जो जानवरों का जो मल है या डंग है, जो गोबर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पेड़ों को पौधों को उगाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद मैन्यूर के रूप में, एक खाद के रूप में काम में आता है। एनिमल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द सॉइल, और एनिमल्स जो हैं जो ज़मीन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन इनिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड दे आर प्रोवाइडेड विद द nitrogen by the bacteria that lives in the soil in the root of the some plants. Wildlife add beauty of the forests. Animal helps the plant to reproduce. Plant take the sun energy and produce food. Animal gets the sun energy from the plant indirectly. A healthy environment is needed of every living being. So we all need to conscious and save the environment for getting further. We also need to take remedial steps to preserve our environment. तो इस तरीके से हमें पर्यावरण को बचाना है, और पर्यावरण को बचा के ही हम अपना और हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। दैट्स ऑल। ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। मैं इसमें से अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे, जब हमारा इंटरेक्टिंग क्लास शुरू होगा तब हम इसके बारे में आपसे आगे बात करेंगे।